In the morning session, one of my students asked, "Have you seen God?" Gently I replied, "God is an invisible source of energy and inspiration. God is a matter of faith and conscience, not to be seen in physical form." You are welcome in this lecture, and it's the second lecture, class 9, NCERT Science and Technology. And the chapter is "The Matter Around Us Appears." There are many things, such as butter, sugar, salt. To scientists, nothing is pure. पर हमारे जो दैनिक जीवन में जो प्योरिटी की बात है वो ये है कि कोई उसका कंटेमिनेशन नहीं हो। जैसे वी टॉक ऑफ प्योर वाटर, मतलब क्या हो, कुछ उसमें अशुद्धि नहीं हो, कोई केमिकल्स नहीं हो, डस्ट नहीं हो। या हम आटा ही लेते हैं तो उसमें कोई मिलावट नहीं हो। यह दैनिक जीवन की बात है। पर साइंटिस्ट के लिए नथिंग इज प्योर, राइट? सो हियर टू द साइंटिस्ट मिल्क, घी, butter, salt, spices, water, minerals, juice are not pure. Rather, they are the mixture of different substances, right? And next, a pure substance consists of a single type of particles, isn't it? Now see this table. In our last talk, we have seen the different states of matter: solid, liquid and gas. And in addition to these three states of matter, we have also seen plasma and Bose-Einstein condensate. So now here you see a matter, solid, liquid or gas. The matter will be in two forms. One is your pure substance and another one is called mixtures, right? Here no fixed composition. Now again the pure substance, see here, pure substance, you can see elements, elemental form में रहेंगे, compound form में रहेंगे, right? If a substance is pure and in elemental form, तो क्या होगा? इसकी विशेषता क्या है? Cannot be broken down to simpler substances. जो एलिमेंट होगा उसको सिंपल सब्सटेंस में नहीं तोड़ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं आयरन है, कॉपर है, इसको नहीं तोड़ सकते हैं। सो कैनॉट बी ब्रोकन डाउन टू सिंपल सब्सटेंसेस यदि हमारा मैटर एलिमेंटल फॉर्म में होगा तो। नेक्स्ट हम आते हैं, फॉर एग्जाम्पल्स यहाँ पर है नीचे में भी, कॉपर, ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन, मरकरी एक्सेट्रा। नाउ नेक्स्ट कम टू द कंपाउंड्स। एग्जाम्पल्स ऑफ कंपाउंड इज व्हाट? वाटर, पानी। इट इज मेड अप ऑफ hydrogen and oxygen, H2O, right? Methane, CH4, made up of hydrogen, made up of carbon and hydrogen, right? Same with the salt, table salt, NaCl. It is made up of what? Sodium and chlorine. So now see here, compounds की क्या विशेषता है? The feature of the compound is compounds have fixed composition, cannot be broken down into elements by chemical or electrochemical reactions. Remember, right? Next, come to the mixtures. No fixed composition. Here you find the mixture are of two types. One is homogeneous. Next one is heterogeneous. Right? Now see the homogeneous. Homogeneous uniform composition. Examples are sugar in water, salt in water, sulfur in
carbon disulfide, water in alcohol, etc. These are the examples of homogeneous mixtures. What? Okay. Next, see the heterogeneous, non-uniform composition. Examples are what? Sand and salt, sugar and salt, water in oil, etc. Isn't it? Next, see, come to the solution, right? Solution, see, solution is homogeneous mixture of two or more substances, remember. And another term is the suspension. Suspension is a heterogeneous mixture. And now next come to the colloidal heterogeneous mixture. Very clear? So now three terms are there: a solution, suspension, and what? Colloidal solution. Solution, again I am repeating, solution क्या है? ये homogeneous mixture है. Suspension क्या है? heterogeneous है. And colloidal solution क्या है? heterogeneous है, जो बाद में देखेंगे कि colloidal solution will give rise to the Tyndall effect. Tyndall effect, जैसे फॉरेस्ट में आप जाएंगे तो फॉरेस्ट के कैनोपी से जब प्रकाश पार करता है तो रे ऑफ लाइट जब क्या होता है? स्कैटर हो जाता है. तो टिंडल इफेक्ट इज नथिंग बट द स्कैटरिंग, जो अभी हम देखेंगे फिर. या फिर आपके घर में स्मॉल होल रहता है जिससे कि प्रकाश किरणें आती है, सूर्य की किरणें आती है. तो यू विल फाइंड देयर नाउ द लाइट इज कमिंग थ्रू द वेरी नैरो स्पेस और नैरो होल, राइट, across the wall of your room. Then the light is scattered there by the dust particles, right? Next come to the, again just I am telling you, Tyndall effect and colloidal solution, right? Solution of copper, remember the important points here. First important points here, this one. Solution of copper sulfate does not show Tyndall effect, remember. Tyndall effect is a scattering of light by the colloidal particles. यहाँ पर क्या है याद रखेंगे, कि solution of copper sulfate does not show Tyndall effect. And next point is very important here, remember, mixture of water and milk shows Tyndall effect. Why? Because it is a colloidal form and colloidal solution gives rise to the Tyndall effect. Next come to again Tyndall effect, a scattering of light by dust and smoke in air. हवा में जो स्मोक रहते हैं, धुआं जो रहते हैं या धूलकण जो रहते हैं, उसके द्वारा जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है वो टिंडल इफेक्ट हुआ. यहाँ पे देख लें यहाँ पर कि व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट. जैसे डेंस फॉरेस्ट में क्या होता है? मिस्ट होता है. मिस्ट होता है जिसको कोहरा कुहासा बोलते हैं. उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं. वो वाटर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो फंसे रहते हैं किस में? एयर में. इमेजिन द फॉरेस्ट. आप जंगल की कल्पना कीजिए, डेंस फॉरेस्ट है, डेंस फॉरेस्ट में मिस्ट है, फॉग है, तो दे आर दी वाटर ड्रॉपलेट्स. उसमें पानी का छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं जो हवा में फंसे होते हैं. वो क्या होता है? कोलाइडल सॉल्यूशन की तरह काम करता है. एंड दिस कोलाइडल सॉल्यूशन गिव राइज टू द टिंडल इफेक्ट व्हेन द लाइट पासेस थ्रू द कैनोपी ऑफ द डेंस फॉरेस्ट. इट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट. रिमेंबर क्या है ये? स्कैटरिंग ऑफ लाइट. स्कैटरिंग ऑफ लाइट और भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन से है, याद रखेंगे. यदि स्कैटरिंग ऑफ लाइट सिंपल एयर पार्टिकल से होंगे एटमॉस्फेयर के, तो क्या होगा वहाँ पर? फिर स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होगा? आकाश नीला होता है. वो आकाश नीला होता है, राइट. उस तरीके से स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या कहाँ होता है? समुद्र का पानी भी नीला होता है. इट इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट. बट दिस टिंडल इफेक्ट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट ड्यू टू द colloidal solution, remember. Now next come to know are the few terms. First I start with the solution. Solution, see, solution is the homogeneous mixture, remember. Dimension of the particle size is that 1 nanometer. 1 nanometer means what? 10 to the power minus 9, remember. So the particle size is what? 1 nanometer. और थर्ड पॉइंट क्या है? Cannot be seen by the naked eye. खुली आंखों से आप इसको देख नहीं सकते हैं. थर्ड पॉइंट. एंड नेक्स्ट
नो स्कैटरिंग, सॉल्यूशन से कोई स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट एंड फिफ्थ पॉइंट द एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स में आप देख लें, जैसे क्या है, टिंचर ऑफ आयोडीन। टिंचर ऑफ आयोडीन का मतलब क्या हुआ कि आयोडीन का अल्कोहल में सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इनटू अल्कोहल, दिस इज टिंचर। याद रखेंगे, टिंचर ऑफ अल्कोहल। पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द टिंचर ऑफ अल्कोहल, यू हैव टू रिप्लाई, आंसर आप करेंगे आयोडीन प्लस अल्कोहल, रिमेंबर। सेकेंड आइए सोडा वाटर। इन सोडा वाटर क्या है यहाँ पे, CO2 एंड प्लस वाटर। CO2 यहाँ पर क्या होगा, सॉल्यूट होगा, एंड वाटर यहाँ पर सॉल्वेंट है, याद रखेंगे। उस तरीके से एयर इज ऑल्सो सॉल्यूशन, रिमेंबर इट, एयर इज ऑल्सो सॉल्यूशन। इसमें क्या है हमारा, O2 है, ऑक्सीजन 21% यू नो, एंड 78% नाइट्रोजन है, और भी हमारे पास डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, CO2 होते हैं, कुछ स्मॉल अमाउंट में हीलियम भी होते हैं, लेकिन उनके जो रेशियो जो होते हैं, अमाउंट्स जो होते हैं, वो काफ़ी कम होते हैं। हम फिर सॉल्यूशन में और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो वी टॉक ऑफ द सॉलिड सॉल्यूशन। एल्वाइज जो होते हैं वो सॉलिड सॉल्यूशन के एग्जाम्पल है, याद रखेंगे, एल्वाइज। फिर हम आते हैं ब्रास। ब्रास क्या है, ये भी हमारा सॉल्यूशन है। ये हमारा क्या है, जिंक है। ब्रास जो एलॉय है और ये जिंक है। 30% जिंक होता है ब्रास में, एंड 70% कॉपर होता है, याद रखेंगे इसका। एंड थर्ड हमारे पास जो है गैसियस सॉल्यूशन है। एयर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ गैसियस सॉल्यूशन, राइट। नेक्स्ट कम द सस्पेंशन, राइट। सस्पेंशन इज द हेट्रोजेनस, रिमेंबर, सॉल्यूशन होमोजेनस और सस्पेंशन हेट्रोजेनस। आप देखेंगे कि अगर एक बाल्टी में, या मान लेते हैं शीशे के एक जार में पानी रहता है, अब पानी में धूल कण रहते हैं, तो धूल कण बीच में पानी के वॉल्यूम में तैरते रहते हैं वो वहाँ पे, राइट। दिस एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन। लेकिन इसी को अगर बैठने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर तक, इफ़ यू लेफ्ट फ्री, इफ द लेफ्ट फ्री, आप डिस्टर्ब नहीं करोगे, तो आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन, डस्ट पार्टिकल्स विल सेटल एट द बॉटम ऑफ द जार। जार के नीचे में वो जाके वो ये थम जाता है, राइट। तो सस्पेंशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजेनस मिक्सचर। सेकेंड, कैन बी सीन थ्रू द नेकेड आई, एंड थर्ड पॉइंट एट स्कैटर्स लाइट, ये से स्कैटर लाइट होता है। नेक्स्ट कम टू द colloidal solution. Colloidal solution, remember, heterogeneous mixture. Second feature, cannot be seen by naked eye, खुली आंखों से आप देख नहीं सकते हैं, ये फर्स्ट फीचर। सेकेंड वन, एंड थर्ड वन, colloidal solution scatters light. फोर्थ वन, एग्जाम्पल्स, फॉग, क्लाउड्स, मिस्ट, याद रखेंगे। ये एरोसोल टाइप है, मतलब एरोसोल टाइप का मतलब हुआ कि लिक्विड प्लस गैस। नेक्स्ट आइए जेली, चीज, बटर, मिल्क, फेस क्रीम। नेक्स्ट कम टू मिल्क ऑफ मैग्नेशिया, मड एक्सेट्रा। ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ colloidal solutions, right? One very important point about the colloidal solution is that its components cannot be separated by the ordinary method. Rather, you need some different method to separate the components of the colloidal solution, and that method is called centrifugation. याद रखेंगे। तो colloidal जो solutions होंगे, उसके जो components होंगे, उसको अलग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक अलग मेथड अपनाना पड़ेगा, that is called centrifugation. Centrifugation process और centrifugation technique, remember. ये सवाल अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट आते हैं, हम सेपरेशन कैसे करेंगे। मिक्सचर हमारे पास है, तो हाउ विल सेपरेट। तो सेपरेटिंग द मिक्सचर कंपोनेंट्स, तो कुछ हमने यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट जो सेपरेशन की बात आती है, उसके टेक्निक को मैं दे रहा हूँ यहाँ पे। आई एम नॉट डीलिंग इन डिटेल्स कि हर एक टेक्निक की डेफिनेशंस या और भी अब डिटेल्स मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो सेपरेशन है उसके प्रोसेस को बोल रहा हूँ। तो फर्स्ट हमारा है कि सेपरेशन ऑफ कैम्फोर एंड सॉल्ट बाय सब्लिमेशन। कैम्फोर मीन्स कपूर समझते हैं, सॉल्ट है। तो क्या सब्लिमेशन में क्या होता है कि सॉलिड हमेशा वो सीधे वेपर में चला जाता है। सब्लिमेशन इज द प्रोसेस वेयर द सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू द गैसेस स्टेज डायरेक्टली विदाउट एज्यूमिंग लिक्विड फेज। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास अगर नमक रहेगा, कपूर रहेगा, तो उसको अलग यदि हमको करना पड़ेगा
तो क्या होगा, कपूर ऐसे ही वॉलेटाइल होता है उड़ जाएगा, या हल्का गर्म करने से कपूर उड़ जाएगा तो अलग हो जाएगा। इस तरीके से हम बाय सब्लिमेशन मेथड से इसको अलग कर सकते हैं। तो ये सवाल आपको आता है कि व्हाट इज द प्रोसेस यूज्ड इन द सेपरेशन ऑफ ए मिक्सचर हैविंग कैम्फोर एंड सॉल्ट, देन योर आंसर मस्ट बी sublimation. Next come to the separation of dyes in black ink. Separation of dyes in black ink, second examples मैंने दिया आपको। ये किस मेथड से होगा? This is by the method of chromatography. Remember, chromatography याद हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं थर्ड, separation of two miscible liquids by distillation. डिस्टिलेशन विधि से हम दो मिसिबल जो हमारे पास लिक्विड्स होंगे उनको हम अलग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और हमारे पास है, दैट इज कॉल्ड द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सीयर, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी डिस्टिलेशन का एक प्रकार है, जिसमें क्या होगा कि यदि दो हमारे पास लिक्विड्स है और दोनों लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट में 25 डिग्री सेल्सियस से कम डिफरेंस है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द टू लिक्विड्स, if the difference between the two liquids in a mixture is less and the boiling point, if the boiling point difference between the two miscible liquids is less than 25 degrees Celsius, then the technique used to separate them is known as the fractional distillation, right? Now मैंने लिख भी दिया कि boiling point difference less than 25 degrees Celsius. Next, separation of compound of air by, अगर you know air is a mixture, nitrogen, oxygen, carbon dioxide, other components are also there, hydrogen, helium in a small in a small amount. Then अगर air के component को दूर करना, निकालना, अलग करना है, तो you have to take use of what? Fractional distillation. Remember, fractional distillation. So if you want to, this is 4, this is 5. If you want to separate the air components, you need fractional distillation. Next, come to point number 6, components of colloidal solution by centrifugation process. In the earlier I told you. Next, come to a physical change and the chemical change. By physical change and the chemical change. Physical change means what? Color, हार्डनेस, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। यहाँ पे केमिकल चेंज का मतलब हुआ केमिकल रिएक्शन। से फॉर एग्जाम्पल, आप रिटर्न है मैनी एग्जाम्पल, से रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना, इफ देर इज ए आलमीरा इन योर हाउस या आयरन पॉट, आफ्टर सम टाइम इट गेट्स रस्टेड, ये कैसा चेंज हुआ? ये केमिकल चेंज हुआ। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। क्यों केमिकल चेंज हुआ? क्योंकि आयरन जो होंगे से कंबाइन करके ये बना देंगे आयरन ऑक्साइड, Fe2O3 हो सकता है या Fe3O4 भी हो सकता है। ओके, you may balance the equation का बैलेंस कर लेंगे। That's why this is the chemical change and chemical reaction. Chemical change means chemical reaction, right? So rusting of iron is a chemical change or the chemical reaction. What about the boiling of water to form steam? अब क्या है, अगर हम पानी हमारे पास से गर्म कर देंगे, वहाँ से बदल जाएगा, तो पानी ही रहेगा। वो ओनली शेप चेंज किया है, ओनली क्या है आपका स्टेट चेंज किया है। अगर बर्फ़ है पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस टेम्परेचर लेकर के हीट दे दोगे। इफ़ यू हीट द आइस, पीस ऑफ आइस, you will get water. If you heat the water, volume of water, it will go to the gaseous phase. So this is simply the change of state. There is no chemical reaction. यहाँ पर chemical reaction नहीं है। By simpling the temperature value, we have changed the state of matter, right from ice, water, or the gaseous. Such examples may be others also. Other दूसरे भी अन्य example हो सकते हैं, right? So this is what? This is the example of physical change, right? And now come to the cutting of trees. ठीक है, अगर कोई पेड़ को काट दोगे टुकड़े टुकड़े में,
तो फिर जोड़ोगे तो फिर पेड़ नहीं बनेगा। तो बात तो सही है, इसमें केमिकल चेंज नहीं हुआ, इसे कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा लगेगा कि केमिकल चेंज में यही कहा जाता है कि जो बन गया दोबारा वापस नहीं हो सकता है, राइट। इसमें ऐसा लगता है कि कोई पेन है, पेन को तोड़ दे, पेंसिल को तोड़ दे, तो ऐसा लगता है कि पेंसिल को तोड़ दिया तो फिर जोड़ के पेंसिल बना नहीं सकते हैं उस रूप में, तो वो केमिकल चेंज हो गया। ऐसी बात नहीं है। और फिजिकल चेंज हुआ इसलिए कि उसमें कोई, हालांकि वो वापस नहीं आएगा लेकिन उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ है। डेट्स वाई कटिंग ऑफ ट्रीज और व्हेन यू ब्रेक द पेंसिल और द पेन, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ, या आपके घर में शीशे का बर्तन ही टूट जाता है, तो ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंज, नॉट द केमिकल चेंज, राइट, बिकॉज देयर इज नो केमिकल रिएक्शन। तो ये हमारा क्या हुआ, कटिंग ऑफ ट्रीज भी क्या हुआ, दिस ऑल्सो द फिजिकल चेंज। बर्निंग ऑफ वुड एंड पेपर, आप कार्बन को जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ये केमिकल चेंज। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज, केमिकल चेंज, राइट। बर्निंग ऑफ वुड और द पेपर इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। कटिंग ऑफ ट्रीज तो मैंने बता ही दिया, आपका फिजिकल चेंज है ये। रिपीट हो गया ये। नेक्स्ट, बर्निंग ऑफ कैंडल, जो हमारा जो मोमबत्ती जलती है वो बहुत फिजिकल चेंज भी हो गया, केमिकल चेंज भी हो गया, क्योंकि मोमबत्ती जलेगी तो मोमबत्ती पिघलेगी, मोम पिघलेगा, तो मेल्टिंग ऑफ द वैक्स जो हुआ वो फिजिकल चेंज हो गया। लेकिन मोमबत्ती जलने से क्या हुआ, बर्निंग प्रोसेस में क्या होगा, जला तो CO2 में कन्वर्ट हो गया वो, तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ द केमिकल चेंज। सो द बर्निंग ऑफ द कैंडल इज बोथ एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल एंड द केमिकल चेंज, याद रखिएगा। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ बर्निंग ऑफ अ कैंडल, physical plus chemical change, right? So this way we have seen that in our surrounding the matter is there, and it exists in solid, liquid and gas form, maybe as suspension, colloidal solution, so called the suspension, right? And we have seen the different properties of so-called the mixture, compound, isn't it? We have also seen different techniques of separating the components of a mixture, right? All these points are very important from the examination point of view, both from the basically from the PT point of view. And I think in addition to this listening, you must go through the textbook, 9th NCERT, Science and Technology. That's all for the day. Thanks for giving me a patience or listening.